So ladies and gentlemen, let's hope and wish कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हॉकी के मैदान को दोबारा से आबाद करने और पाकिस्तान में हॉकी के शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद साबित होगा। आज की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पाकिस्तान के वजीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब की मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि न सिर्फ हम स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को पसंद करते हैं, बल्कि इस गेम की अपलिफ्ट के लिए तमाम कोशिशें और काविशें भी की जाएंगी। और जनाब वज़ीर आज़म, आपकी यहाँ मौजूदगी से तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें खिलाड़ी, इंतज़ामिया और स्पॉन्सर शामिल हैं, सबकी हौसला अफजाई हुई है। बहुत शुक्रिया। आज आपकी मौजूदगी इस बात का गमाज़ है कि स्पोर्ट्स हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी भी है और हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा भी रहेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी में अपना खोया हुआ माजी और दोबारा से बहाल करेगा और हम उसी मकाम पर दोबारा पहुंचेंगे जिसके लिए हम दुनिया में जाने और पहचाने जाएं। So ladies and gentlemen, now I request our chief guest, Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Anwarul Haq Kakar, to please grace the stage for the prize distribution ceremony. I also request and welcome MD AWT Lieutenant General Naveed Mukhtar, Hilal-e-Imtiaz Military on stage. I request and welcome President PHF Brigadier Khalid Sajjad Khokhar, retired, to please grace the stage. I request Mrs. Shehla Raza, Vice President Pakistan Hockey Federation. I request Secretary Army Welfare Trust Brigadier Mukhtar Ahmad, Sitara-e-Imtiaz Military, retired, and all our national heroes present: Olympian Chaudhry Akhtar Rasool, Olympian Mr. Salahuddin Siddiqui, Olympian Mr. Shehbaz Ahmed Senior, Olympian Mr. Muhammad Asif Bajwa, Olympian Mr. Rana Mujahid Ali, Olympian Mr. Kamar Ibrahim, Olympian Mr. Taqir Dar, Olympian Mr. Abdul Hanif Khan, and Olympian Mr. Naeem Akhtar. And I also request Member PHF, Mr. Rahat Khan, to please join us. And I request our national heroes to join us on the next stage, the stage adjacent to this stage. I request all the Olympians to please grace the stage. So ladies and gentlemen, Pakistan has a glorious past and rich history in hockey. Pakistan hockey stands as beacon of sporting excellence. In the Olympic realm, Pakistan has left an indelible mark, securing 3 golds, 3 silver and 4 bronze. In World Cup, Pakistan triumphed 4 times, and in Asian Games, we won the title 7 times, and in prestigious Champions Trophy, we won the title 7 times. So, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 67वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के तामुन से किया गया और मैं यहाँ पे दरख्वास्त करूंगी एमडी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। Bismillahirrahmanirrahim. Respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Let me begin by congratulating Madi Petroleum team for winning this 67th Army Welfare Trust National Hockey Championship. At the same time, I would like to appreciate Wabda, the runners-up. They have played an excellent hockey throughout the tournament. Very well done, Shabash. इन 2 टीमों के अलावा इसके साथ साथ में तमाम टीम्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, ना कि सिर्फ अच्छी गेम का मुजाहरा किया बल्कि एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप भी दिखाई, उन सब को भी हमारी तरफ से वेरी वेल डन एंड शाबाश। At the outset, let me also appreciate Pakistan Hockey Federation and Army Welfare Trust for organizing this wonderful tournament. I'm extremely happy and excited today to see
in addition to the good hockey match, I am extremely excited to see a lot of our national heroes जो आज इस जगह के ऊपर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग सब मिलकर हमारे जो नेशनल हीरोज़, ओलंपियंस, मेडलिस्ट और हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं उनके लिए मेरे साथ आप ज़बरदस्त तालियां बजा के इनका इस्तेमाल करें। आज से कुछ दिन पहले भी जब हम इस ग्राउंड में इकट्ठे हुए थे तो हम इस मैदान की दूसरी जानिब थे, तो उस वक़्त मैं वहाँ से खड़े होकर कह रहा था कि बातें करने से ज़्यादा दिल करता है कि इंसान हॉकी पकड़े और इस ग्राउंड में खेल शुरू करे। आज फिर इस जगह के ऊपर हम मौजूद हैं। बिलीव यू मी, जब भी हम इस ग्राउंड को देखते हैं या इस ग्राउंड में कदम रखते हैं, बहुत सारे यंग लोगों को हॉकी खेलते देखते हैं और इसी तरह आप दूसरी तरफ अपने सीनियर्स को देखते हैं कि जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे हीरोज़, हॉकी के ओलंपियंस, मेडलिस्ट, तो खून जोश मारता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जज्बा बहुत ऊपर चला जाता है। और हमारी ख्वाहिश यही है कि यही जो जोश और जज्बा जो हम लोग फील करते थे कि अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हमारी ये जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन भी वही जज्बा और जुनून हॉकी के बारे में पाकिस्तान में देख सके। हम लोग बड़े हुए, मैदानों में खेलते हुए, अपनी हॉकी की टीम को हमेशा मेडल और ट्रॉफीज उठाते हुए, कभी भी ऐसे नहीं होता था जब भी पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरती थी तो हम सिर्फ एक ही चीज़ होता था कि इस दफ़ा हम लोग ट्रॉफी उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, और हमेशा यही होता था कि सोने का मेडल जो है इन लोगों के गले में होगा। और बिलीव यू मी कि ये जो खुशी होती है, इस खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। और मेरे नज़दीक किसी भी कौम को इकट्ठा करने के लिए स्पोर्ट्स जो है, खेल, एक बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इन्हीं सब चीज़ों को सामने रखते हुए AWT में हम लोगों ने फैसला किया कि हम इस गेम को स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने ये भी डिसाइड किया कि ना सिर्फ स्पॉन्सर करेंगे बल्कि इसको ऑर्गेनाइज भी करेंगे, सो दैट इसको एक अच्छे तरीके से एक रास्ते पर डाला जा सके। ये हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया है, ये 67 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में भी हम ये 3 साल के लिए इस चैम्पियनशिप को हर साल मुनक्कद करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने खिलाड़ियों को मेडिकल को कवर किया जा सके, कि अगर कोई भी खिलाड़ी हमारा खेल में ज़ख्मी होता है तो हम उसकी पूरी मदद करें। और इसके अलावा और भी बहुत सारी सजेशंस हैं जो हम लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर हर किस्म की मदद करने को हमेशा तैयार रहेंगे, और इनके साथ मिलके हम पाकिस्तान की हॉकी को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हॉकी हमारा नेशनल खेल है, हॉकी हमारा पैशन है। इसको हम सब ने मिलकर आगे लेके जाना है, इसको हम सब लोगों ने मिलकर उस जगह के ऊपर ले जाना है कि जिस जगह के ऊपर ये एक वक्त में था। और मुझे कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह आप सब लोगों की मेहनत की वजह से जो आजकल के खिलाड़ी हैं और पुराने खिलाड़ी जो इसको सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह हम ज़रूर उस मुकाम के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात याद रखने की है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं तमाम स्टेक होल्डर्स, जब मैं स्टेक होल्डर्स कहता हूं तो मेरा मतलब तमाम गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट शामिल है, लोकल गवर्नमेंट शामिल है। गवर्नमेंट्स के अलावा कॉरपोरेट सेक्टर, बिजनेस हाउसेस, मीडिया, डिपार्टमेंट्स, क्लब्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फेडरेशन, ओलंपियंस और एक्स प्लेयर्स, I would ask everyone to come forward
and play your part to improve our national game, improve our hockey. और ये हमने ज़रूर करना है, मिल के करना है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस हॉकी को ना सिर्फ सपोर्ट करें बट इसकी स्पॉन्सरशिप भी लें। इस चीज़ को यकीन कैसे बनाया जाएगा कि ये सारे स्टेक होल्डर्स, और ये पहले क्यों नहीं हो सका और अब क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? एक चीज़ पे तो हम सब का कंसेंसस है कि हॉकी को हमने बेहतर करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर करेंगे इन सब स्टेक होल्डर्स की मदद से। लेकिन मेरे नज़दीक किस तरह इस चीज़ को हम इंश्योर करें कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपना अपना रोल प्ले करें। हुकूमत अनफ फंड्स प्रोवाइड करे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हॉकी के लिए, तमाम लोकल गवर्नमेंट्स ग्राउंड और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, बिजनेस हाउसेज स्पॉन्सरशिप्स करें, मीडिया इस हॉकी को बार बार टेलीविज़न के ऊपर दिखाए, स्कूल के अंदर ग्राउंड बने, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इस गेम को ना सिर्फ ग्राउंड बनाएं बल्कि बच्चों को, लड़कों को वजीफ़े दें, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दें। इसके लिए आज इस जगह का इस्तेमाल करते हुए मेरे नज़दीक जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है जिसको ओनरशिप देनी पड़ेगी अगर हम हॉकी को वापस उस अपनी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो हैं हमारे लोग, हमारे पाकिस्तानी। जिस दिन पाकिस्तानियों को ने इस गेम को ओन कर लिया उस दिन ये गेम वापस अपने अरूज पे जाएगी। और हम पाकिस्तानियों ने, हमारे लोगों ने, अवाम ने क्या करना है? मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ताकत अवाम की ताकत है, उससे बड़ी यहाँ कोई बड़ी ताकत नहीं है। तो मेरी आपसे क्या दरख्वास्त होगी स्टेक होल्डर से, अवाम से, कि आप लोग घरों से निकलें और मैदानों को भरें, ग्राउंड भरें, कम आउट एंड और खेल खेलें। खेल नहीं खेल रहे तो आप खेल को देखें, खेल अपनी टीमों को सपोर्ट करें और हॉकी की गेम को सपोर्ट करें। जब आप मैदानों में होंगे, जब लोग बाहर निकले होंगे, तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स मेरे नज़दीक मजबूर होंगे कि अपना अपना रोल अदा करें, और यही एक वाहिद तरीका है जिससे हम हॉकी को वापस इंशाअल्लाह ताला अपनी उस ग्लोरी की जगह के ऊपर वापस लेके जा सकते हैं। आज हम सबको बड़ी खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर से भी ये कहूँगा कि वो इस गेम को अपने ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस गेम इन अ लॉन्ग टर्म। एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होना चाहिए इस हमारी नेशनल गेम के साथ, इस हाईएस्ट दफ्तर का। और मैं ये भी इनसे कहूँगा कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मदद करें और पाकिस्तान में पहली पाकिस्तान हॉकी सुपर लीग को हम जल्द से जल्द शुरू कर सकें। आपकी मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। जब हम पाकिस्तान की पहली इंशाल्लाह हॉकी सुपर लीग को शुरू करेंगे तो वो ना सिर्फ हमारा ये जितना भी लोकल टैलेंट मौजूद है इनको बहुत सारे नए मौके मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स भी आएंगे, फॉरेन प्लेयर्स के साथ स्पॉन्सरशिप भी आएगी और वापस हॉकी को एक अच्छा नया रुख मिल जाएगा। और ये वो रास्ता होगा जिसके ऊपर चल के हॉकी जो है इंशाल्लाह वापस अपने अरूज के ऊपर जाएगी। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत ख़त्म करूं, मैं सबके बिहाफ पे ये कहूँगा कि हम सब का, तमाम स्टेक होल्डर्स का जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वो ये है कि हम अपने हॉकी के हीरोज़ का ख्याल करना है। और मेरे नज़दीक जब हम अपने हॉकी के हीरोज़ का ख्याल करेंगे, ये नई जनरेशन के जो हीरोज़ हैं, ये जो नई जनरेशन के प्लेयर्स हैं और जो फ्यूचर के प्लेयर्स होंगे, उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ही ये होगा कि उनको पता है कि जो भी इस मैदान में पाकिस्तान के लिए उतरता है, पाकिस्तानी उसका आखिरी वक्त तक हर तरह से ख्याल करते हैं। एट द एंड
मैं इस चीज़ पे भी एम्फसाइज़ करूँगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि अगर ये जो मैंने सब बातें की हैं और हमने हॉकी को वापस अरूज के ऊपर लेके जाना है, तो मैं अपनी हॉकी की कम्युनिटी से भी कहूँगा कि आप सबको यूनाइट होना पड़ेगा, आप सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। जब आप लोग सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो हॉकी की तरक्की नहीं हो सकेगी। हम जो मर्जी करते रहें, हॉकी वापस उधर नहीं जाएगी। तो ना सिर्फ मैं तमाम स्टेक होल्डर से एक दफ़ा फिर कहूँगा और हॉकी कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सबको मिलजुल कर हॉकी की ग्लोरी के लिए काम करना है। और इंशाल्लाह जब हम ये करेंगे तो यकीन जाने कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा कि दोबारा हम लोग, हमारी जो टीम्स हैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना सिर्फ वो गोल्ड मेडल पहनेंगी और बल्कि हर किस्म की ट्रॉफ़ी को ऊपर करेंगी और हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है उसको उन मैदानों में दोबारा लहराया जाएगा इंशाल्लाह। At the end, I would like to thank Prime Minister for joining us this evening and encouraging the players and the organizers of the tournament. My highest appreciation to PHF, all the participating players and teams, and especially, I would like to highlight my own team, Army Welfare Trust, board members and each and every member who are present here. आप लोगों की मेहनत के बगैर हम इस तरह का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। So my special appreciation to all the team of Army Welfare Trust. Thank you all. May Allah always be our guide and protector. Allah Ta'ala आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपका एक एक लफ्ज़ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी से आपकी गहरी दिलचस्पी और तवज्जो का गमाज़ था एंड वी आर ग्रेटफुल कि आपने अनाउंस किया है कि आइंदा 3 साल तक हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप को आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट स्पॉन्सर करेगा, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द हॉकी प्लेयर्स एंड फॉर द गेम। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ख़वातीन और हज़रात, हॉकी हमारा कौमी खेल है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ हैं। आज की 67वीं AWT नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आप बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि तकरीब से खिताब फरमाएं। ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अक़वाम आलम में किसी भी कौम का किरदार और उसकी पहचान सकाफ़त और खेलों से होती है। माज़ी करीब में पाकिस्तान हॉकी टीम का दुनिया में एक इंतहाई नुमाया मुकाम था जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर बतदरीज कम होता चला गया। लेकिन मुझे आज ये देखकर खुशी है कि इस खेल में एक बार फिर जान पड़ गई है। आप सबको मालूम है कि आज पाकिस्तान की आबादी 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान किसी भी कौम के मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। इन नौजवानों के लिए बेहतरीन ग्राउंड्स और खेलों के सामान की फरहमी सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसमें तमाम प्राइवेट व निजी डिपार्टमेंट्स और कंपनीज़ को भरपूर शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए ताकि ये नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में अपना कलीदी किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकें। मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हुई कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार बज़ाते खुद हॉकी के खिलाड़ी थे और हम वक्त इस कौमी खेल की तरवीज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इनकी ग्रां कदर, सोच और ज़ाती काविशों की वजह से आज हम इस खूबसूरत जगह पर एक शानदार टूर्नामेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज मैं इस टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और PHF की तमाम इंतज़ामिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझे इंतहाई खुशी है कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और PHF ने हॉकी की तरवीज के लिए न सिर्फ कोशिशों को जारी रखा बल्कि इंतहाई जांफशानी के साथ 67वें कौमी हॉकी चैम्पियनशिप कप का इनेकाद यकीनी बनाया।
मुझे यकीन है कि तमाम इदारे बशमूल आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन टूर्नामेंट में शामिल तमाम डिपार्टमेंटल टीम्स, ऑफिशल्स, एम्पायर्स, प्लेयर्स, मुंतज़मीन और बिलखुसूस शुरका इसी जज्बे के साथ पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ में अपना अहम किरदार अदा करते रहेंगे। आखिर में जीतने वाले और रनर अप टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद मुख्तार साहब और तमाम मुतल्लिका लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी काविशों के बदौलत हमें एक बेहतरीन टूर्नामेंट देखने का मौका मिला। आखिर में नौजवानों के लिए यही पैगाम है, बेमेहनत पे हमको ही जोहर नहीं खिलता, रोशन शरीर तेश सहे खाने फरहात। ये तो मैंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी। अभी कुछ बात आप बुजुर्गों की इजाज़त, इन नौजवानों की इजाज़त से मैं भी करना चाहूँगा। ये बोलो, मैं भी हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ। हॉकी मेरा जुनून था, हॉकी मेरा इश्क था। 1982 में अख्तर रसूल साहब कई मरतबा आपने मुझे रुलाया जब आप हसन सरसदा को टाइम पे पास नहीं देते थे और हम यहाँ लोट पोट के कि क्यों नहीं दे रहा ये पास उसको। वो इन्वॉल्वमेंट, वो टीवी के स्क्रीन के साथ जुड़ना, आज मुझे आप लोग नॉस्टैल्जिया में ले गए। और उन नॉस्टैल्जिक मोमेंट में जब हमने हॉकी देखनी और खेलनी शुरू की, ग़ालिबन 81 और 82 का दौर था। इस्लाह साहब रिटायर हो चुके थे और इस्लाह साहब की रिटायर के साथ कलीमुल्ला, समीउल्लाह, मंजूर जूनियर मरहूम को याद न करना हॉकी के साथ ज्यादती, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। जो ड्रिबलिंग मंजूर साहब मरहूम का पता नहीं लगता था कि ये गेंद हॉकी के साथ चिपकी हुई है या खेल रहे हैं या उनके साथ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जब हमने हॉकी देखनी छोड़ी तो शहबाज सीनियर साहब आ गए थे। तो ये वो सफ़र है जिसमें मैं खुद विटनेस रहा हूँ। सेंटर ऑफ से लेकर शायद की गोलकीपरी का ज़माना, ये एक एक लम्हा जो है ना वो मेरे दिलो दिमाग में महफूज है। मैं हॉकी के साथ जो भी अपनी हमल कैपेसिटी में कर सका वो ज़रूर करूँगा और चाहूँगा कि ये रोल मॉडल्स इस जनरेशन को नज़र आए थ्रू वीडियोस, थ्रू ट्रेनिंग सेशंस। और जब तक किसी के पास किसी भी शोबे में रोल मॉडल ना हो, मैं नहीं समझता कि उस शोबे में किसी किस्म की तरक्की मुमकिन है। हम लकी हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तमाम खेलों के साथ हॉकी में हमारे पास वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल्स। इस्लाहुद्दीन साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकतें डाले, अ लिविंग लेजेंड। आज शहबाज सीनियर, इन तमाम लोगों को देखकर मुझे एक रूहानी मुसर्रत हो रही है। ये वो लोग थे जिनको हम देख देख के बड़े हो रहे थे, जिनको हम देख के सोचा करते थे कि कभी इनसे हम हाथ मिला पाएंगे। आज मेरे अल्लाह ने वो दिन हमें नसीब भी किया और ये शर्फ भी हमें हासिल हुआ कि हम इनसे मुसाफा भी कर रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, एहतराम के साथ एक ताल्लुक़ को आगे बढ़ा रहे हैं। कौम आपको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती है। वी रिस्पेक्ट यू, हम आपका एहतराम करते हैं। आपके बाकी मसाइल में भी यकीनन आपका साथ देंगे, लेकिन ये जो कर्ज है, जो जज्बात का कर्ज है, वो हम आपको सही अंदाज में लौटाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है उसमें भी कोताही और कमी हो, उसको आप दरगुजर कीजिएगा, लेकिन हमारी नीयत पे शक ना करें, नीयत हमारी दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि आपका जो जायज़ मकाम इस माशरे में है
उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको रिकग्नाइज किया जाए। इसके साथ बाकी स्पोर्ट्स भी है, स्क्वाश में जहांगीर खान साहब है, जांशेर खान साहब है, क्रिकेट में लेजेंड्स है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज में इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की हैं कि जो चेहरा है बाकी दुनिया में पाकिस्तान के साथ, उसको निखारा है, उसको संवारा है, उसको खूबसूरत किया है। आप हमारे लिए बायस ज़ीनत रहे हैं, आप हमारे लिए बायस जमाल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको फॉलो करना है और आपने इस मकाम पे पहुंचने की सही करनी है, कोशिश करनी है। यही वो जगह है जहां पे खड़े होकर यहां पे एक और शख्स खड़ा होगा और वो आपको याद करेगा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हासिल होती है इंसान को, इंसान जो करता है, कुरान हकीम का मफहूम है कि मैं इंसान को वही अता करता हूं जिसकी वो सही करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। स्ट्रगल और यकीन मोकम अमल पे हम मोहब्बत फाते आलम, जहादे जिंदगानी में ये मर्दों की हैं शमशीर हैं। जिसने अपनी डेस्टिनी को सोच लिया, तयन कर लिया, किसी भी किस्म की कोई भी एम्बिशन हो, और फिर कंसिस्टेंटली उसको परसू किया, उसके हसूल के लिए कोशिश की। मैं आपको अपनी मिसाल से बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिनात में से है कि कायनात में अल्लाह उसके लिए दरवाजे ना खोले। मायूसी से बढ़ के कोई कुफ्र है ही नहीं। जो करना चाहते हैं ये 24 करोड़ लोग अगर अक़वाम आलम में आज फैसला कर ले कि हमने सबसे नुमाया होना है, तो ये सबसे नुमाया होंगे। शर्त ये है कि तसलसल के साथ, पैशन के साथ, इश्क के साथ। इश्क तमाम मुस्तफा, अक्ल तमाम बूल अहब। ये जिद अकल नहीं है, अकल की सतह जो है ना वो पैशन से, इश्क से, मेहनत से, जज्बे से उसका मकाम कम है। दुनिया में जो भी चीज का उसूल होता है उसके पीछे पैशन के अलावा कोई चीज नहीं होती है। तो अगर आप इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए एक नुमाया मकाम चाहते हैं, तो यही हुसूल है, यही उसका तरीका है कि जज्बा और मेहनत ये आपको जुनूनी भी बनाता है, और साहिब जुनू ही वो साहिब इज्जत रहता है। जो साहिब जुनू ना हो वो साहिब इज्जत नहीं बन सकता। तो मेरी दुआ इस अहद के साथ कि जन साहब जो भी हमारी अम्बल कैपेसिटी में होगा, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को हम मोबिलाइज करेंगे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लेंगे। सुपर लीग का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। पाकिस्तान में छोटी छोटी डिविजनल के सतह पे, शहरों के सतह पे जिस तरह क्रिकेट सुपर लीग का आइडिया है, हॉकी का होना चाहिए, और उसको प्राइवेट सेक्टर की इनिशिएटिव के साथ हम इनकरेज करेंगे। मीडिया, पीटीवी को मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि हॉकी को पर्टिकुलरली प्रमोट करने के लिए चंद इनिशिएटिव्स लें, और उसमें जो पुराने हमारे रोल मॉडल्स हैं उनको एंगेज करें, उनसे इनपुट लें, कमेंटेटर्स की सूरत में इनको एंगेज करें, ट्रेनर्स की सूरत में, कोचेस की सूरत में पार्टिसिपेशन इनकी बढ़ाएं। और जैसे ही उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, ये जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द टू जनरेशंस ये बढ़ेगी, और इंशाल्लाह यू विल हैव एंड हॉकी विल हैव ऑल आउट गवर्नमेंट सपोर्ट। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म साहब। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी
जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार, मैनेजिंग डायरेक्टर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट से, कि वो मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ को आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से सोवेनियर पेश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस हियर सर। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब से कि वो PHF की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक को सोवेनियर पेश करें। थैंक यू वेरी मच। और अब दरख्वास्त है प्रेसिडेंट PHF से कि MD AWT लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री को सोवेनियर पेश किया जाए। और अब प्रेसिडेंट PHF से दरख्वास्त है कि ग्रुप सेक्रेटरी AWT ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड को सोवेनियर पेश करें। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे हम सब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत मोहतरम जनाब शहला रज़ा साहिबा के, इनके लिए ख़ास तौर पे तालियां बजाएं क्योंकि पाकिस्तान विमेन हॉकी की जब बात होती है तो इनकी एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर फिनोमिनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर। So ladies and gentlemen, moving forward, let's start the prize distribution ceremony और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मैन ऑफ द टूर्नामेंट से। पाकिस्तान एयरफोर्स टीम के अब्दुल रहमान करार पाए हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस अब्दुल रहमान, पूरे टूर्नामेंट में 11 गोल स्कोर किए हैं। सो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए MD AWT लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार हिलाल इम्तियाज मिलिट्री 150 cc मोटरसाइकिल की चाबी जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट को पेश कर रहे हैं एज प्राइज। बहुत मुबारक हो। और अब्दुल रहमान फ्यू मिनट्स मुझे बताइएगा कि 11 गोल आपने पूरे टूर्नामेंट में स्कोर किए हैं। वाओ, मार्वलस परफॉर्मेंस। थैंक यू। लेकिन फाइनल नहीं खेले तो कोई दुख है उसका? उसका तो बहुत ज़्यादा दुख है डेफिनेटली। बस एफर्ट किया टीम ने पूरी, लेकिन नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है कि हम यहाँ पे दावत दें मैन ऑफ द मैच को। और आज का कांटेदार मैच आप लोगों ने खुद देखा। मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं अब्दुल्ला इश्तियाक, मारी पेट्रोलियम के गोलकीपर। आखिरी जो एक आपने पेनल्टी शूट को रोका है एंड डिसाइसिव मोमेंट ऑफ द मैच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं दरख्वास्त करूंगी मिस्टर शराफत हुसैन CEO ग्रीन वेंचर्स IT कंपनी से कि तशरीफ लाएं और 70 cc मोटरसाइकिल की चाबी आज के मैन ऑफ द मैच के हवाले करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस अब्दुल्ला इश्तियाक। और क्या कहेंगे, यकीन था कि ये आखिरी पेनल्टी शूट जो है वो आप रोक लेंगे। जी जी प्लीज आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये साहब जी जो कुछ भी है ये मेरी टीम की दुआओं और ब्रिगेडियर साहब की वजह से। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पेनल्टी शूट तो आपने खुद रोकी थी।
but it's sweet that he's giving credit to his team. And ladies and gentlemen, अब मैं यहाँ पे दावत दूंगी रनर्स अप टीम को कि वो तशरीफ लाएं और अपने मेडल्स वसूल करें। सो वापडा जो कि आज के फाइनल मैच की रनर्स अप टीम करार पाई, एक एक करके तशरीफ लाते जाइए। अकमल हुसैन गोलकीपर, तौसीक अरशद, तौसीक अरशद, तंजीमुल हसन, मोहम्मद अलीम बिलाल, गजम्फर अली, तसव्वुर अब्बास, मोइन शकील, अकील अहमद, अमजद अली खान, उमर भुट्टा, मोहम्मद हम्मादुद्दीन अंजुम, मुर्तजा याकूब, रोमान, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अतीक, अवैस अरशद, हन्नान शाहिद, राना अब्दुल वहीद अशरफ, अली अजीज और वकार। गोलकीपर वापडा टीम। और अब मैं यहाँ पे दावत दूंगी कैप्टन रनर्स अप टीम को कि वो तशरीफ लाएं along with his team to receive the trophy for the runners up. Mohammad Umar Bhutta of Wabda team. Congratulations, Umar. उमर, कुछ वक्त के लिए आपके यहाँ पे दरकार है। बहुत ज़बरदस्त मैच, आखिरी जो सेकंड हाफ था उसमें तो आपने बहुत प्रेशर रखा है मारी पेट्रोलियम के ऊपर, लेकिन मैच लूज किया एक पेनल्टी शूट के ऊपर। सो हाउ इज द मोरल एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली गुड गेम। आई थिंक हमने मैच का स्टार्ट अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से हमें करना चाहिए था, बट थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर वी प्ले वेरी गुड एंड वी ट्राई आवर बेस्ट, बट रिजल्ट जो है वो हमारी मर्जी के ऊपर नहीं आया। बस कांग्रेस MPCL हॉकी टीम, दे प्लेड गुड गेम, होप फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल विन। थैंक यू वेरी मच। But very well played, a beautiful exhibition of mental toughness and team spirit. So ladies and gentlemen, put your hands together, इसलिए कि अब हम यहाँ पे वेलकम करने जा रहे हैं अपनी विनर्स टीम को। मैं यहाँ पे दावत दूंगी MCBCL की टीम को कि आएं और अपना गोल्ड मेडल रिसीव करें। सबसे पहले गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक, मोहम्मद सुफियान खान, अरबाज अहमद, जुनेद रसूल, अली रजा, अरशद लियाकत, हाशिर अली, अफराज हकीम, वसीम अकरम, मोहम्मद मोहसिन गोलकीपर,
शुएब खान, उमैर सत्तार, अली अनवर, रेहान भट्ट, उमर मुस्तफ़ा, नवीद आलम, रमज़ान सरवर, खालिद अली, वक़ार, एहतशाम। अब मैं यहाँ पे दावत दूंगी विनिंग कैप्टन वसीम अकरम को कि तशरीफ लाएं, कुछ बातें पहले और उसके बाद अपनी ट्रॉफी रिसीव करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस वसीम, बहुत अच्छा गेम, लेकिन सेकंड हाफ में एमपीसीएल कुछ थकी भी नजर आई, अंडर प्रेशर नजर आई। इज इट अ मैटर ऑफ लक के गेम विन किया है या आप समझते हैं कि यू वर डिजर्विंग? अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डिज़र्विंग क्योंकि टीम एफर्ट्स थी माशाल्लाह। हमने पिछले मंथ की ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक दफ़ा मेहनत हमारी रंग लाई है। नेशनल चैम्पियनशिप के हम चैम्पियन बन चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं दावत दूंगी विनिंग टीम को एंड कैप्टन को कि प्लीज रिसीव योर ट्रॉफी। लेडीज एंड जेंटलमैन, विनर ऑफ 67th AWT नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, द MPCL टीम। Wow, the winning moment. मुबारक हो। और अब मैं दरख्वास्त करूंगी आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ और दीगर मेहमान आने गिरामी से कि टीम्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन के लिए सर तशरीफ ले आइए। मारी पेट्रोलियम की टीम को विनिंग टीम होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर मेहमान आने गिरामी रनर्स अप टीम के साथ ग्रुप फोटो सेशन के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सर। और अब आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ से दरख्वास्त है कि AWT के बोर्ड मेंबर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन के लिए तशरीफ ले आएं। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपसे दरख्वास्त है कि AWT के ग्रुप बोर्ड मेंबर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स के साथ ग्रुप फोटो सेशन के लिए तशरीफ ले आइए। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब। आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी आपने वक्त निकाला और शिरकत की। आपकी आज की तकरीब में शिरकत तमाम खिलाड़ियों, तमाम स्टेक होल्डर्स, स्पॉन्सर्स के लिए बाइस से मसरत और हौसला अफजा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। MPCL टीम को बहुत मुबारक। ख़वातीन व हज़रात, आपकी आज की तकरीब में शिरकत का ख़ास तौर पर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लेट्स होप एंड विश कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हॉकी के मैदान में माजी जैसी कामयाबियां और फतूहात नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।